Hello everyone, this is your Vandini Sharma. Welcome back to my channel VMB Tutorial. So in last session we have discussed about the circles, its perimeter, that is called circumference, about its area. Okay, and in today's session we are going to discuss the exercise 11.3 that is totally based on the circle. Okay, so let's start it. So question number 1 is find the circumference of the circles with the following radius and take pi equals to 22/7. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको रेडियस दे रखी है, सर्कल की रेडियस दे रखी है आपको, और सर्कल का सर्कमफेरेंस आपको निकालना है. ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. हियर यू हैव गिवन द रेडियस ऑफ सर्कल एज 14 सेंटीमीटर. रेडियस यहाँ पर आपको 14 सेंटीमीटर दे रखा है. निकालना क्या है आपको? सर्कमफेरेंस. सो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, क्या फॉर्मूला है किसी भी सर्कल का सर्कमफेरेंस फाइंड आउट करने के लिए? 2 पाई आर. आर इज हियर radius. So see, r we have given 14 centimeter and pi we have to take 22/7. r is 14. So 14 we will treat as numerator and 7 we will treat as denominator. So 7 1 ja 7 and 7 2 ja. Okay, 14. So 2 2 ja 4 into this 22 upon 1. यहाँ लेफ्ट पार्ट क्या है? 1. So 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 means 88 centimeter is the circumference of circle whose radius is 14 centimeter. Okay. Now see the second part, B part. Here the radius of circle is in millimeter, 28 millimeter. So circumference will be 2 pi r. Okay, and 2 pi you have to take 22/7 and r is 28 millimeter. So its circumference will also be in millimeter. See, 7 1 ja 7, 7 4 ja 28. 7 and 28 are the multiples of 7. So we can divide this 7 and 28 which are numerator and denominator. So 7 1 ja 7 and 7 4 ja 28. See, 4 2 ja 8 into 22. So 8 2 ja 16, 1 carry, 8 2 ja 16 plus 1 70. So 176 millimeter will be the circumference of circle whose radius is 28 millimeter. Okay, now the C part is same. We have to find the circumference of circle whose radius is 21 centimeter. Okay, and circumference of circle we know is 2 pi r. 2 pi r. Okay, so 2 into pi, pi is 22/7 into r, r is 21. Okay, so 7 1 ja 7 and 7 3 ja 21. So 3 2 ja 6 into 22. So it will be 6 2 ja 12. 1 carry, 6 2 ja 12 plus 1 13. So 132 centimeter will be the circumference of circle whose radius is 21 centimeter. Okay. Now question number 2 is find the area of the following circles given that radius. Okay, and here you have to use pi 22/7. तो ये इस क्वेश्चन में आपको सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है और डिफरेंट रेडियस आपको दे रखी है. ओके, और पाई की वैल्यू आपको 22/7 यूज़ करना है. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट. इन दिस पार्ट वी हैव गिवन रेडियस 14 millimeter. Okay, so as we know that the formula to find the area of circle is pi
r square. Okay, pi here we have to take 22/7 and radius we know 14. So 14 square means 22/7 into r square means r into r. If any number has power 2, it means that number multiply by itself. So 14 multiply by 14. ओके 14 का 14 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 times 14 है, इट मीन्स 14 स्क्वायर. ओके, सो सी 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. सो 22 into 2 into 14. So see 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 into 14. So 14 4 जा 56, 5 carry, 14 4 जा 56, 56 plus 5 61. So 616 millimeter square. Area has unit in square. Unit square. So unit is millimeter. So millimeter square. ओके, एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में होती है, पावर 2 में होती है. अगर आप मीटर में कैलकुलेट कर रहे हैं एरिया तो इट्स मीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर में कैलकुलेट करें सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ मिलीमीटर में हम कैलकुलेट करें दैन मिलीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ सी द सेकेंड पार्ट. In this part you have given the diameter, that is 49 meter, and we know that area of circle is pi r square, and we know that r is what? Half of diameter. सर्कल का रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ होता है. सो इन प्लेस ऑफ आर वी कैन राइट d/2, d फॉर डायमीटर होल स्क्वायर. ओके, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है. सो आई हैव रिटन इन प्लेस ऑफ आर d/2. सी पाई इंटू डायमीटर कितना है? 49 अपॉन 2 होल स्क्वायर. ओके, so 22/7 into 49 upon 2 into 49 upon 2. Okay, 49 upon 2 has power 2, so 49/2 into 49/2. See 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, and this 7 1 ja 7, 7 7 ja 49. So see the remaining part 11 into this 7 into 49 upon this 2. Okay, so if we multiply this 11 7 ja 77 into 49 upon 2. Okay, so if we multiply 49 by 77, so the answer will be 3773 upon 2. Okay, now divide this number by 2. So 2 1 ja 2, 1 will be remainder, then you will carry 7 to 2 8 ja 16, again remainder will be 1, and if we carry 7 so it's 17. So again 2 8 ja 16, then 1 remainder and 3 we will carry here. So 2 6 ja 12, decimal 2 5 ja 10, means 1886.5 meter square. This will be the area. Now see the C part. Here radius is 5 centimeter. Okay, so area of circle is same pi r square, and pi we have to take as 22/7. R is 5 centimeter, means 5 into 5. Okay, r square की जगह अगर हम 5 स्क्वायर पुट करेंगे इट मीन्स 5 into 5. So see 5 2 जा 10 और 22 into 5 5 जा 25 upon 7. So 25 2 जा 50, 5 क्या भी 25 2 जा 50, 50 plus 5 55, so 550.
divide by 7. See, 7 7 ja 49. Okay, so if we subtract 49 from 55, so it will be 6 then 0. So 7 8 ja 56, 4 7 5 ja means approx 78.5 centimeter square. 78.5 centimeter square is the area of circle whose radius is 5 centimeter. Now question number 3 is, if the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius, also find the area of sheet. Take pi is equals to 22/7. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको एक सर्कुलर शीट दे रखी है, मीन्स एक शीट है, किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है, और उसका सर्कमफेरेंस आपको गिवन है 154 मीटर. तो उस सर्कुलर शीट की आपको रेडियस निकालनी है, फिर उसका एरिया निकालना है. ओके, सो सी, सर्कमफेरेंस of circular sheet. We have given as 154 meter. Okay, सर्कुलर शीट की आपको सर्कमफेरेंस 154 मीटर दे रखी है, और आपको पता है सर्कमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, 2 पाई r. So 2 पाई r is equals to 154 मीटर. ओके, सर्कमफेरेंस की जगह हमने सर्कमफेरेंस होता क्या है, दैट वी हैव पुटेड हियर एंड 154 as it is. Okay, so 2 pi we have to take as 22/7 into r is equals to 154. This r we have to find out. So see, r is equals to 154. 7 is in denominator, so if you transpose this side, so it will be multiplied upon 2 and 22 are in multiplication as well as in numerator part, so this side they will be in denominator, means 2 into 22. Okay, see, if we cancel this by 2, 2 1 ja 2, 2 1 ja 2, and this 2 7 ja 14, 1 will be carried, so 2 again, 2 7 ja 14. Now see, 11 1 ja 11, 11 7 ja 77. So what is the left part here, 7 into 7, and this side 2 into 1 is 2, means 49 upon 2, or we can write it as 2 2s are 4 and 2 4s are 8.25 are 10, means 24.5 meter will be the radius of the circular sheet. Okay, रेडियस क्या होगी सर्कुलर शीट की, 24.5 मीटर. ओके, नाउ area of circle. So area of circular sheet will be pi r square, means 22/7 into, see, 49 upon 2 is 24.5. ओके, तो डेसिमल में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंथी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर देखिए 7 डिनोमिनेटर में है, अगर हम यहाँ रेडियस की जगह 49 अपॉन 2 लेते हैं तो इजीली कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें. सो 49 अपॉन 2, और वी कैन राइट स्क्वायर, सो 22/7 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू 49 अपॉन 2. सी, 7 7 जा 49 and here 2 1 ja 2, 22, 2 1 ja 22, 2 1 ja 2 and 11 2 ja 22. So see, 11 into 7 into 49 and upon this 2,
means 77 into 49 upon 2. If we multiply these two, so it's 3773 divided by 2. So 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 and 2 5 जा 10, means 1886.5 meter square will be the area of circular sheet. Okay, so first with the help of given perimeter means circumference of this circular sheet, we have calculated radius, its radius. Okay, then after using this radius we can find area of the circle. Okay, now question number 4 is a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 round of fence. Also find the cost of the rope if it cost rupees 4 per meter. Take pi is equals to 22/7. ओके, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक गार्डन है, किस शेप में है, सर्कुलर शेप में है. ओके, एक सर्कुलर गार्डन है, उसका डायमीटर आपको 21 मीटर दे रखा है. अब उस गार्डन के बाउंड्री पर मीन्स चारों ओर एक गार्डनर को फेंसिंग लगानी है, और फेंसिंग में भी वो क्या रोप लगाना चाह रहा है, और वो भी रोप के कितने, गार्डन के चारों ओर 2 राउंड्स लगने हैं. और यहाँ पर फेंसिंग का जो कॉस्ट है मीन्स रोप को फेंस करने का जो कॉस्ट है वो आपको दे रखा है कि पर मीटर फेंस करने का चार्ज 4 रुपीज़ है. ओके, तो अगर रोप के 2 राउंड्स एज अ फेंसिंग लिए जाते हैं तो कितना कॉस्ट होगा फेंसिंग का. ओके, सो सी इफ सपोज दिस इज अ सर्कुलर गार्डन एंड इट्स डायमीटर यू हैव गिवन 21 मीटर. ओके, अब इस गार्डन के चारों ओर फेंसिंग लगनी है. ठीक है, और इस फेंसिंग में 2 राउंड्स रोप के लगाने हैं. ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ सर्कुलर गार्डन is 21 meter. Okay, so radius means r will be 21/2 because radius is half of diameter, so it's 21/2 meter. Okay, so अगर गार्डन की चारों ओर रोप का एक राउंड एज फेंस किया जाता है, दैट मीन्स इट इज इट्स सर्कमफेरेंस. सर्कल के रोप से एक राउंड फेंस किया जा रहा है, इसका मतलब यहाँ हमें क्या कैलकुलेट करना है, सर्कमफेरेंस. ओके, सो सी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन will be 2 pi r. Okay, so 2 pi we have to take 22/7 into r 21/2. So see 7 3 ja 21, 2 1 ja 2, 2 1 ja 2. It means 2 3 ja 6 into 11 means 66 meter. 66 meter will be the circumference of circular garden. Okay, or we can say 66 meter is the length of rope to fence in 1 round. Okay, अगर हम फेंस का एक राउंड लगाते हैं तो रोप की लेंथ किसकी इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस की इक्वल होगी. ओके, बट यहाँ पर हमें रोप के कितने 2 राउंड्स एज अ फेंस यूज करने हैं. तो देखिए क्या होगा, length of rope needed for
2 राउंड्स। यहाँ पर रोप के आपको एज अ फेंसिंग 2 राउंड्स लेने हैं, तो रोप की लेंथ क्या होगी? देखिए, जब आप 1 राउंड रोप से सर्कुलर गार्डन का लगा रहे हैं, इसका मतलब दैट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ गार्डन। ओके, अब 2 राउंड्स लगाने, इट मीन्स 2 इंटू दिस 66, so it will be 132 मीटर। ओके, तो रोप की लेंथ तो आपको पता चल गई कि एज अ फेंसिंग 2 राउंड्स रोप के लगने हैं, तो टोटल लेंथ क्या होगी रोप की? 132 मीटर। अब देखिए, अब आपको इसका कॉस्ट भी बताना है। पर मीटर रोप जो एज अ फेंसिंग हम गार्डन के चारों ओर लगा रहे हैं, पर मीटर का रेट कितना है? 4 रुपीज़। तो 132 मीटर रोप जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना होगा? तो देखिए, सो कॉस्ट ऑफ रोप वन मीटर के लिए रोप जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट कितना है? 4 रुपीज़। सो 132 मीटर रोप का कॉस्ट कितना होगा? 4 इंटू 132 मीन्स 4 2 जा 8 एंड दिस 50 मीन्स 528 रुपीज़। टोटल कॉस्ट रोप का क्या होगा? 2 राउंड्स एज अ फेंसिंग यूज़ करने के लिए 528 रुपीज़। ओके, तो सबसे पहले इस सर्कुलर गार्डन की आपको डायमीटर दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने रेडियस निकाला, और रेडियस निकालने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो हम फेंसिंग के लिए रोप यूज़ कर रहे हैं, तो इस सर्कुलर गार्डन के 2 राउंड्स रोप के एज अ फेंस किए जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 राउंड लेते हैं, सपोज यहाँ से हमने स्टार्ट किया फेंसिंग करना, यहाँ से स्टार्ट किया, रोप को यहाँ से स्टार्ट किया लगाना, और इस तरीके से 1 राउंड यहाँ जाकर कंप्लीट हो रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, 1 राउंड इस बाउंड्री का, दिस इज नथिंग बट द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कुलर गार्डन। ओके, तो अगर हम इस सर्कुलर गार्डन का सर्कमफेरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? रोप की लेंथ फॉर 1 राउंड, 1 राउंड में जितना रोप लग रहा है उसकी लेंथ हो जाएगी। तो वो हमने कैलकुलेट किया, कितना आया? 66 मीटर। ओके, तो इसका मतलब 1 राउंड रोप का लगाने के लिए कितना मीटर रोप की ज़रूरत पड़ेगी? 66 मीटर। अब यहाँ पर एज अ फेंसिंग कितने राउंड्स लगाने हैं इस सर्कुलर गार्डन के? 2 राउंड्स। तो 2 राउंड्स में रोप की कितनी ज़रूरत पड़ेगी? सो 2 इंटू दिस 66, 132 मीटर। सो टोटल लेंथ ऑफ द रोप नीडेड फॉर 2 राउंड्स इज 132 मीटर। ओके, अब यहाँ पर आपको ये भी बताना है कि 2 राउंड लगाने के लिए एज अ फेंस 2 राउंड रोप के जो लग रहे हैं उसका चार्ज क्या होगा, कॉस्ट क्या होगा खरीदने का? तो पर मीटर रोप का कॉस्ट कितना है? 4 रुपीज़। तो टोटल यहाँ पर लेंथ रोप की कितनी यूज हो रही है? 132 मीटर। सो 132 मीटर रोप को परचेज करने का चार्ज कितना हो? 4 इंटू 132, दैट मीन्स 528 रुपीज़ विल बी द cost of rope needed for 2 rounds of fence. Okay, now question number 5 is, from a circular sheet of radius 4 centimeter, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of remaining sheet. Take pi is equals to 3.14. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि एक सर्कुलर सीट है, इस तरीके से एक सर्कुलर सीट है जिसकी रेडियस आपको क्या 4 सेंटीमीटर दे रखी। सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर सीट एंड दिस इज द रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, सो इस सर्कुलर सीट में से एक सर्कल को रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और उस सर्कल की रेडियस क्या है? 3 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से अगर इतना 3 सेंटीमीटर रेडियस है तो सर्कल आपका कुछ ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 3 सेंटीमीटर। तो ये सर्कुलर शीट थी, उसमें से 3 सेंटीमीटर
रेडियस का सर्कल रिमूव कर दिया गया, मीन्स ये पार्ट आपका रिमूव कर दिया गया। तो रिमेनिंग शीट का आपको एरिया बताना है, मीन्स ये पार्ट, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये शेडेड पार्ट आपको हटाना है और ये जो रिमेनिंग बच रहा है इसका एरिया आपको निकालना है। ओके, तो देखिए अगर इस सर्कुलर शीट का हम एरिया फाइंड कर लें, ओके, और फिर इस स्मॉल सर्कल जो कि कट होना है इसमें से उसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। सो सर्कुलर शीट के एरिया में से अगर इस सर्कल के एरिया को हम माइनस कर दें तो रिमेनिंग क्या होगा, हमारे यही पार्ट होगा। ओके, सो सी एरिया ऑफ सर्कुलर शीट विल बी पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, 4, आर क्या है 4, सो 4 स्क्वायर, इट मीन्स 4 4 जा 16 पाई। यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो उसको अभी हम यहाँ पर पुट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, एज इट इज़ रहने दीजिए पाई को। सो दिस इज द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट। नाउ एरिया ऑफ सर्कल of radius 3 centimeter, पाई आर स्क्वायर, एरिया तो सेम ही, फॉर्मूला तो सेम ही रहना है, बस क्या है रेडियस चेंज होती रहेगी। सो पाई इंटू आर इज 3 स्क्वायर, मीन्स 3 3 ज़ा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस स्मॉल सर्कल जिसकी रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर, उसका एरिया हो गया। अब हमें निकालना तो क्या है कि इस सर्कुलर शीट में से ये 3 सेंटीमीटर के सर्कल को अगर हम कट कर दें, रिमूव कर दें, तो रिमेनिंग शीट का एरिया क्या होगा, मीन्स ये एरिया निकालना है। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट विल बी द एरिया ऑफ सर्कुलर शीट minus area of circle of radius 3 सेंटीमीटर। ओके, सर्कुलर शीट में से हम 3 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल को माइनस कर रहे हैं, तो वो क्या रिमेनिंग शीट का एरिया आ जाएगा। सो एरिया ऑफ सर्कुलर शीट इज दैट वी हैव कैलकुलेटेड 16 पाई minus area of circle of radius 3 centimeter, that is 9 pi. Okay, so 16 pi minus 9 pi is 7 pi. Okay, 7 pi. So 7 pi. Now put the value of pi here, 3.14. So it will be 7 4 ja 28, 2 carry, 7 1 ja 7 plus 2 9, 7 3 जा 21, means 21.98 centimeter square is the area of this remaining sheet. ओके, इस शीट का जो बची हुई शीट है, जब हमने इस सर्कुलर शीट में से जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर थी उसमें से 3 सेंटीमीटर का एरिया माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग शीट का एरिया आपका कितना आ रहा है 21.98 centimeter square. Okay, so this is all about today's session in which we have discussed question number 1 to question number 5, right? If you have any query, doubt related to these questions, can ask on comment section, and in my next upcoming session we are going to discuss next further question of same exercise. Till then, keep watching my channel. Thank you.